Good morning to all the august gathering gathered here to celebrate Scientia Igniting Young Minds. Respected dignitaries on the dais, teachers and dear students. Scientia is the Latin word meaning knowledge. This program focuses on making science and learning exciting and relevant for the youth like you. At the stage of class 10th and 12th, Scientia offers an exciting platform to explore the real life applications of what you study in physics, chemistry, biology and mathematics. The program facilitates young minds with hands-on experiments, engaging workshops, thought-provoking seminars, and interactive sessions with experts. The igniting young mind means sparking curiosity. It means giving you the freedom to explore beyond the syllabus. Means whatever is in your syllabus being taught, you are free to think out of the box. You are free to think beyond that, and it means inspiring you to look at problems as opportunities to invent solutions. Think of great minds like Einstein, Dr. Kalam, Elon Musk, Stephen Hawking, etc. And what set them apart was not just intelligence, but imagination, passion, and the courage. So, this platform matters a lot for you. As class 10th and 12th students, the choice you make now, at this time, at this venture, will shape your future, but don't feel pressurized. Explore, participate in experiments, make projects, ask questions to your teachers, your friends, and most importantly, never stop being curious, because curiosity is the real fuel for scientific discovery. So, try making working models, participate in quizzes, puzzles, science fairs, Olympiads, whenever you get the opportunity. Read biographies of the scientists. They will inspire you. Use technology to explore new fields, artificial intelligence, robotics, space science, etc. Scientia is a mindset. कहते हैं यत भावो तत भवति. Yat bhavo tat bhavati means what you think is what you will happen. What you think is what will happen. This talks about the power of our thoughts and emotions in shaping what happens in real life. If we think about positive things and set positive intentions, positive results will naturally follow, and 100% it will follow. This almost like the law of attraction. Dear children, dear friends, if you leave your pen from your hand, where this pen is going to? I think above? No, it is 100% going towards the surface of the earth. Why? Because there is a law, that is the law of gravitational law, attraction. Similarly, whatever you think you are in your mind, there is applicable a law, the nature's law, that is law of attraction. So the whole nature starts attracting all things to complete your thoughts. And that is why yat bhavo tat bhavati. By repeating this affirmation that you can do it and this will happen naturally. So our mind, the repeating this affirmation, we train our mind to focus on positive results, better situations and more happiness. You have seen Jalvindu Nipatena
क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च. You might have seen here, when each dripping droplet fills the container, that pitcher, that घड़ा, जैसे एक एक बूंद जब गिरती जाती है तो घड़ा पूरा भर जाता है. Similar thing happens with the education, with the dharmasya. Dharmasya means the values inculcated in your personality, and similar thing happens with the dhanasya, means money. When you earn penny and penny, then one day it accumulates in the form of a huge bank balance. Similarly, आप अगर एक एक जो आपका वैल्यूज हैं उनको अपनी पर्सनालिटीज के अंदर प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से आप उसको अगर एक्युमुलेट करते हैं, इनकलकेट करते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे. आपका व्यक्तित्व जो है इतना विशाल हो जाएगा उन वैल्यूज की वजह से, बिकॉज वैल्यू एक्चुअली. एंड सिमिलर हैपेंस विद द एजुकेशन. इफ you go on learning day by day, step by step, day by day, one day you will find that you are having a large treasure of wisdom, treasure of knowledge in your personality. So, how this will be possible? This is only possible, my dear friends, by the execution with the help of the efforts, actions. Each effort will always lead to the result. However small it is, don't worry. Once you have made some effort, it is not going to be in vain. It will add something towards achievement of your goal. आपकी मंजिल की तरफ उसने कुछ कदम बढ़ा दिया है. ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आप स्टेज चढ़ रहे हैं, आपका चौथी मंजिल में आपका घर है और आप कहीं से आए थके हारे हैं और आपने जो है फिर भी एक दो सीढ़ियां चढ़ गए और फिर आपकी सांस फूलने लग गई, आप वहीं बैठ गए. तो जो आपने दो सीढ़ियां चढ़ी हैं, क्या इससे आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हुआ है? तो जब भी आप कोई भी छोटा स्टेप ले लें, ये छोटा एग्जाम्पल समझाने के लिए है, तो इवन ए स्मॉल स्टेप दैट काउंट्स एंड इट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर. तो इट विल लीड यू टुवर्ड्स योर सक्सेस. और कहते भी है ना कि डर लगा था मुझे भी मंजिल का फासला देखकर, डर लगा था मुझे भी मंजिल का फासला देखकर, लेकिन मैं चलता रहा रास्ता देखकर. स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सने है सने, धीरे धीरे. डर लगा था मुझे भी मंजिल का फासला देखकर, लेकिन मैं चलता गया रास्ता देखकर, और मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आने लगी, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर. तो दैट शुड बी देयर. और ये सब कब होगा, क्यों होगा? ये दो लाइनें ध्यान रख लीजिएगा हमेशा, जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आए तो जब उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै और नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगः. यानी जब आप उद्यम करेंगे, यानी एफर्ट्स करेंगे, तो ही इस कार्य सिद्ध होगा. खाली मनोरथ से, ओनली इमेजिनेशन से मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये नहीं होगा. इसके लिए आप मेरा जो है YouTube चैनल जो आपका जीवन सफलता सूत्राज है, उसमें से आप इसको देखिए, उसको डिटेल में आपको मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू दैट. तो उद्यमी, जब तक आप देखते हैं ना, एक शेर जो है अगर हिरन को पकड़ना चाहता है तो क्या वहां बैठे बैठे वो जमना लग जाए मुझे हिरन मिल जाए तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै और नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे. तो सिंह अगर वहीं बैठा रहे तो वो मेरे उसमें पास नहीं आएगा. उसको चेज करना पड़ता है, टारगेट को चेज करना पड़ता है, स्पीड से करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है. तो वट एवर टारगेट यू सेट, यू फॉलो दैट एंड कंटिन्यूसली होना चाहिए. उसमें एफर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होना जरूरी है. तो इसलिए ये करें. और इस सब के लिए एफर्ट्स, उद्यम आप तब कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, अपने खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. यानी शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर जो हमारा है, इसके माध्यम से ही आप सारे के सारे चीजों को क्या कर सकते हो, साध सकते हो, सिद्ध कर सकते हो. आप एग्जाम देना चाहते हो 3 घंटे का, अगर आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या आप एग्जाम दे पाएंगे? नहीं. तो माइंड इट,
आप व्हाटएवर टारगेट यू सेट, फर्स्ट थिंग है आप अपने शरीर को जो है बिल्कुल सही बनाइए, खान पान ठीक रखिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इस तरह से आप करेंगे। अब आपकी बात करियर का, आपके जो ईबीजीसी लोग होंगे वो बहुत सारे आपको चीजें बताएंगे। मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताना चाहूँ तो थोड़ा सा हल्का सा हटके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पीसीबी है, बायोलॉजी है, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, भाई हर एक से नीट क्लियर नहीं होता है, तो इसका मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। देयर आर और भी बहुत से हैं राहें अगर आप चाहें। उसके लिए क्या है, आप नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल में चले जाइए, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, ईसीजी करते हैं। अगर आप जो है एक्सरे बना करके रिपोर्ट नहीं देंगे तो डॉक्टर क्या कर लेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते ना। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आप उसको कम क्यों समझते हैं? ठीक इसी तरह से अगर आपने जो है ईसीजी नहीं बनाया, आपने अगर कैट स्कैन जो है वो स्कैन नहीं किया, सिटी स्कैन नहीं किया, तो आपको कैसे होगा? आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं और करके रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो रह जाएगा ना, फिर वो होगा नहीं। तो दैट मीन्स this thing is equally important, so go through it. If need is not cleared, then go through this and go for that. Similarly, pharmacy, B Pharma, drugs research करिए, फार्मा कंपनी में जाइए। अगर वही बात, अगर आप मेडिसिन बनाने में अपना योगदान दे दीजिए वहां पे, अब वही बात प्रिस्क्रिप्शन कार्ड लिखा रह जाएगा, अगर मेडिसिन ढंग की नहीं मिलेगी तो आप वहां बनाइए ना, अपना योगदान दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल साइंसेज हैं, उसमें आप रिसर्च करेंगे तो उसका आपको मिल जाएगा। वेटनरी साइंस में बहुत ज्यादा आजकल वास्ट स्कोप है। हर एक लोग आप देखें, हर घर में दूसरे तीसरे दिन में आप देखेंगे वो पेट पाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने हैं नहीं, भागे हैं लोग इधर उधर, तो उससे क्या हो रहा है, तो आप जो है उसमें पेट पाल रहे हैं बहुत ज्यादा। बर्ड्स हैं, वो कैट्स हैं, आपके डॉग्स हैं, तो उनका भी इलाज चाहिए। और इससे क्या होगा, जब आपको एक तो सेवा उनकी हो रही है जो है ही, दूसरा जो है जो ये पशु पक्षी हैं, जो एनवायरमेंट हमारा है उसका भी संवर्धन हो रहा है। ठीक इस तरह से आप फोरेंसिक साइंस में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डेसिंग भी है ये। कैसे कि अगर देखिए कहीं पर कोई क्राइम होता है और क्राइम सीन में अगर कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे उनको, लेकिन कुछ एविडेंसेस जो वहां सिचुएशनल एविडेंसेस होते हैं वो हमेशा होते हैं। भाई आपका एक विटनेस नहीं मिल रहा, लेकिन भाई वहां पर जहां पर वो चीज हुआ है, घटित हुआ है, वो जगह तो वहीं है, वहां सारी चीजें हैं। तो उन एविडेंसेस को जब वो इकट्ठा करते हैं, उन एग्जिबिट्स को, तो जब एक फोरेंसिक साइंस के अंदर जब वो चीजें आती हैं, एनालाइज करते हैं आप, तो उसको आप उसके निर्णय तक पहुंचा देते हैं। ये आपका हेल्प हो जाता है, इतना बढ़िया चीज हो जाता है। साइकोलॉजी में बीएससी साइकोलॉजी करें, बीए साइकोलॉजी करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही अच्छा है। क्यों? आजकल आप देखिए बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, ये सिचुएशन ही हमारी ऐसी आ रखी। तो यहाँ पर ये बहुत ही बर्निंग आपका जो है आजकल है। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वहां पर उनकी हेल्प कर सकते हैं, इतने लोगों का आप भला करेंगे, तो ये आप जरूर ले सकते हैं। तो बहुत सारी राहें हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, पीसीएम है, तो मर्चेंट भी देखिए, बीटेक आईआईटी वगैरह सब है, लेकिन हर एक तो नहीं जा सकता। तो जहां पर आप अपना फील्ड इस तरह से चूज करिए, लक्ष्य जो है वो आपका प्राप्य भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका प्रासंगिक भी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आप जो है वीडियो में देखें, आप मेरे जो है उसमें अंदर हाउ टू सेट द गोल्स, उसको भी आप देख सकते हैं। मर्चेंट नेवी में जाएं, नॉटिकल साइंस है, मेरीन इंजीनियरिंग है, डिफेंस में एनडीए में जाएं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इतना बढ़िया इसमें अंदर है। डिसिप्लिन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन से ही आप जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। डिसिप्लिन नहीं है तो जिंदगी नहीं है, ये कन्फर्म है। मतलब आपका शरीर का कई चीज कुछ भी ले लीजिए आप, तो डिसिप्लिन इज ए मस्ट टू सक्सेस। डाटा साइंस यानी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इसमें बहुत सारा है। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, अगर आपको उड़ने का शौक है तो आप कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में जा सकते हैं। एक्चुअल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, अगर मैथ्स आपके पास है, फाइनेंस को मिला दे, ये एक्चुअल साइंस में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आजकल और बहुत अच्छा पेइंग है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। बाकी तो डिटेल में आपके जो ईवीजीसी वाले मैडम होंगे या सर होंगे वो बताएंगे आपको बहुत ज्यादा, मैं इसमें ज्यादा बता नहीं सकता। तो इसलिए जो 12th वाले बच्चे हैं जिनके बायोलॉजी भी और मैथ्स भी हो, तो उन दोनों में से चूज कर लें। और क्लास 10th वाले बच्चे आज ही के दिन इसको चूज करें इन चीजों को समझने के बाद, ताकि आप उसी हिसाब से क्लास 11 में क्या लेंगे, 12th में क्या लेंगे, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएंगी। तो इसलिए आई थिंक दिस इज फॉर ऑल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।